Good morning to all. In previous video, we will discuss worksheet 3. Now, हम लोग worksheet 4 स्टार्ट करते हैं. Worksheet 4. So, first question is find the curved surface area and total surface area of right circular cylinder whose height is 15 cm and radius of base is 7 cm. सिलेंडर हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ चुके थे, सरफेस एरिया पढ़ चुके थे, और सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिवाइड किया गया था. तो फर्स्ट इज सी एस ए होता था 2πr/h एंड टी एस ए इज 2πr/h प्लस 2πr². ये सिलेंडर का सी एस ए कर्व सरफेस एरिया एंड बेस एरिया इज πr² एंड πr², दैट इज 2πr². इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं 2πr into h plus r. So first question is find the curved surface area and total surface area of the right circular cylinder whose height is 15 cm and radius is 7 cm. फाइंड करना है हम लोग को सी एस ए एंड टी एस ए. तो फर्स्ट इज सी एस ए is 2πr/h, that is 2 into 22/7 into r7 into 15. 7 कैंसिल आउट हो गया. 44 into 15, it is 660 centimeter square. एंड टी एस ए टोटल सरफेस एरिया या फिर पर टोटल सरफेस एरिया टी एस ए इज 2πr into h plus r, it is 2 into 22/7 into r is 7 and h 15 plus 7 कैंसिल आउट हो गया. 2 into 22 into 22, 2 into 4 8 4, that is 968. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है. इसमें टी एस ए और सी एस ए फाइंड आउट करना था. नाउ our second question is the diameter of the base of a circular cylinder is 4.2 decimeter and its height is 1 decimeter. Find the area of curved surface area in centimeter. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यूनिट चेंज हो, हमको रेडियस और हाइट किसी और यूनिट में दिया हो और वो एरिया किसी और यूनिट में पूछे, तो सबसे पहले हमको काम करना है जो रेडियस है और जो हाइट है उसको कन्वर्ट करना है जिस यूनिट में हमको आंसर चाहिए. सबसे फर्स्ट में ही कन्वर्ट करना है. जैसे बेस रेडियस डायमीटर ऑफ द बेस डायमीटर दिया हुआ है 4.2, तो रेडियस हो जाएगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.1 decimeter, and we know that 1 dm is equal to 10 centimeter. एक dm में 10 cm होगा. सो r is 2.1 into 10, कैंसिल आउट होके यहाँ पे बचेगा 21 सेंटीमीटर. रेडियस को कन्वर्ट कर चुके हैं सेंटीमीटर में. अब height is 1 dm and we know that 1 dm is 10 cm, so 10 centimeter height is 10 centimeter. Find the curved surface area, that is CSA. CSA is 2πr
R H and 2 into 22 by 7 into radius is 21 and height is 10. 7 3 times हो गया 6 into 22 into 10 132 into 10 20 centimeter square. CSA is 1320 centimeter square. Now the third question is the curved surface area of cylinder is 1320 centimeter square and its base has a radius of 10.5 centimeter. Find the height of the cylinder. So it is given CSA is 1320 and centimeter square. Radius is 10.5 centimeter. Find the height. CSA दिया हुआ है. अब CSA we know that CSA is 2 pi r h, that is 1320. 2 into 22 by 7. तो radius is 10.5 and height is h. सिमल रहेगा 7 से 15 times, 5 से 3 times, 5 से 2 times. That's 2 or 2 cancel out. Then 22 into 3 is into h is 1320 and height is 1320 by 22 into 3. 11 से 2 times, 11 से 120, 60 और 3 से 20 times. So h is 20 centimeter. Now fourth question. The circumference of the base of a cylinder is 176 centimeter and its height is 65 centimeter. Find its lateral surface area, that is CSA. Base of the cylinder. See, we already know that the base of the cylinder is a circular and it is given that circumference of the base, that is circumference of circle. बेस का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और बेस में हम लोग को पता है कि बेस में सर्कल लगा हुआ है और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, दिया हुआ है 176 and height is 65 centimeter and we know that circumference of circle is 2 pi r and 2 pi r is 176. 2 into 22 by 7 to r is 176. R is equal to 176 into 7 divided by 2 into 22. अब 11 से 2 times, 11 से 1 6, 16 times 2 से 8 times और 2 से 4 and r is 28 centimeter and find its lateral surface area. Lateral surface area, that is CSA. CSA निकालना है. CSA is 2 pi r h. यहाँ पर r का वैल्यू और h का वैल्यू पुट करके CSA फाइंड करना है. Now question number 5. Question number 5 is the radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their height are in the ratio 5:3. Calculate the ratio of their curved surface area. यहाँ पर क्वेश्चन में दो सिलेंडर का बात किया जा रहा है और जिस दोनों सिलेंडर में रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, दो सिलेंडर है, देन हम लोग मानते हैं लेट द रेडियस
of first cylinder is, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो रेडियस का 2:3, तो फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा 2 और सेकंड सिलेंडर का 3, तो फर्स्ट सिलेंडर का मान लेते हैं 2x एंड हाइट का रेशियो दिया हुआ 5:3, तो फर्स्ट सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 5 और सेकंड 5। यहाँ पर अब वेरिएबल x नहीं मान सकते हैं क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों अलग अलग क्वांटिटी का बात किया, तो यहाँ पर जब रेडियस को 2x मान चुके हैं तो हाइट को किसी और यूनिट से दिखाना पड़ेगा। जैसे हाइट 5:3 दिया हुआ है तो हाइट वाला हो जाएगा 5y एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर सेकेंड सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा 3x, रेडियस x की क्वांटिटी में था एंड हाइट 3y। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, सेकेंड सिलेंडर का रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है। अब फाइंड करना था कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, दोनों सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। तो फर्स्ट फाइंड करेंगे क्या, CSA ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h। यहाँ पर पाई का वैल्यू नहीं फाइंड आउट, पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट रेडियस फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस इज 2x एंड हाइट फर्स्ट सिलेंडर का हाइट इज 5y, that is 5 to the 10 to the 20 πxy। now CSA of second cylinder, that is 2πrh and 2 into radius is 3x and height is 3y, 18 πxy। now we find the ratio is CSA of फर्स्ट सिलेंडर बाय CSA of सेकंड सिलेंडर, क्योंकि दोनों सिलेंडर के CSA का रेशियो पूछा जा रहा था। देन CSA of फर्स्ट सिलेंडर इज 20 πxy एंड CSA of सेकंड सिलेंडर इज 18 πxy। πxy कैंसिल आउट, 2 से 10 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, देन द रेशियो इज 10:9। great। now question number 6, the outer diameter of a gas cylinder is 20 cm. Find the cost of painting of its outer curved surface at ₹4 square centimeter if the height of the cylinder is 70 cm। अब हाइट दिया हुआ है सिलेंडर का 70 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, पता है कि रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब जैसे कि सिलेंडर है, आउटर डायमीटर का बात करने का मतलब ये होगा कि ये इसका कुछ ना कुछ थिकनेस रहा होगा, सिलेंडर है तो ये कुछ ना कुछ थिकनेस रहा होगा। थिकनेस जब रहा होगा तो इसके आउटर से जब मेजर किया गया डायमीटर, तो डायमीटर कितना आया था 20, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 20 और इसके आउटर कर्व सरफेस एरिया पर ही पेंट करना है। तो आउटर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आउटर कर्व सरफेस एरिया पर ही पेंट करना है। कर्व सरफेस एरिया तो हमको पता करना पड़ेगा कि पहले इसका एरिया हम कितने एरिया पर कर रहे हैं। देन CSA is 2πr/h, 222/7 into 10 into h is 70, सेकेंड से आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, तो इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमको जो पेंट करना है वो टोटल कितने कर्व सरफेस पे करना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इट हैज गिवन दैट cost of painting for 1 meter square, cost of painting for 1 centimeter square is ₹4। so cost of painting 4 rupees, हमको कितने जगह पर पेंट करना है, 400 into 4, 176 रुपीज़, टोटल कितना रुपये लगेगा 17600।
क्वेश्चन 7. A cylindrical vessel open at the top has a radius 10 cm and height 40 cm. Find the total surface area of the vessel. Take pi is equal to 3.14. So सबसे पहले radius is given 10 cm and height is 14 cm. अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेजल्स. और ये वेजल्स सिलेंड्रिकल वेजल्स का टॉप ओपन था, टॉप ओपन है, ये एरिया ओपन है, मतलब यहाँ पर क्लोज नहीं है. तो अब इसका बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया अगर हम फाइंड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इसका टॉप ओपन है, तो इस एरिया वाले, इस पोर्शन वाले को हमको टोटल सरफेस एरिया में माइनस करना पड़ेगा, तभी इसका एक्यूरेट टोटल सरफेस एरिया आ पाएगा. क्यों? क्योंकि सिलेंड्रिकल वेजल्स का जो टॉप पोर्शन है वो ओपन है, और टॉप पोर्शन में हमको पता है कि कैसा है, सर्कुलर पोर्शन है. तो सबसे पहले टी एस ए निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. इसका जो टोटल सरफेस एरिया बन के आएगा वो बनेगा 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस ये अपर और लोअर का पाई 2 पाई आर स्क्वायर. और हमको पता है कि इसका जो ओपन अपर वाला पार्ट है वो क्या है, ओपन है. सो इसका एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर. और ऐसा करने से वो आसान तरीके से बन सकता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा. अगर इस तरह से करते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. फिर से देखते हैं, टी एस से निकालना था लेकिन इसका टॉप पोर्शन ओपन था, तो सी एस इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर इसलिए होता है अपर और लोअर दोनों का एरिया ऐड होता है, लेकिन यहाँ ऊपर ओपन है इसलिए एक ऊपर वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. अब इसको अगर सॉल्व करें, टी एस इज 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर पाई आर कॉमन भी लिया जा सकता है, तो पाई आर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 2h प्लस आर. अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, इस तरीके से आसान हो जाएगा. तो पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था 3.14. जब पाई का वैल्यू दिया हुआ हो तो हम लोग 22/7 नहीं लेते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 गिवन है. एंड आर इज 10 इंटू 2h मतलब 2 इंटू 14 प्लस आर, रेडियस इज 10. हटा देते हैं, 314/10 इंटू 2 इंटू 14 नहीं, हाँ ठीक, 28 प्लस 10 इक्वल टू 38. 314 इंटू 38 इज 11932/10, दैट इज 1193.2. इसका जो टोटल सरफेस बनेगा वो बनेगा 1193.2. सेट क्लियर. टी एस इज 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर. सो वैल्यू पुट करके इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. The length of a roller is 40 centimeter and its diameter is 21 centimeter. It takes 300 complete revolution to move once over to level the floor of a room. Find the area of the room in meter square. पहले ही बोल दिया है कि एरिया किसमें चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए. अब देखते हैं रोलर से
अगर रोलर को ध्यान से देखें तो लेंथ ऑफ द रोलर इज 40 सेंटीमीटर, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, दैट इज 0.4 मीटर। 100 से डिवाइड देंगे। अब डायमीटर दिया हुआ है इसका 21 सेंटीमीटर, डायमीटर t इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कितना, मीटर में अगर चेंज करें तो रेडियस इज, डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 10.5 सेंटीमीटर। अब अगर मीटर में चेंज करें तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 0.105 मीटर और लेंथ इज 0.4 मीटर। ठीक है, अब हमको समझना है कि जब रोलर वन टाइम मूव करेगा, वन टाइम घूमेगा, तो इस एरिया ये अपने कर्व सरफेस एरिया को कंप्लीट करेगा। अगर इसको एक बार घुमाया जाए तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा CA उतना जाके फ्लैट सरफेस पर एरिया कवर करेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट टेक 300 रिवोल्यूशन, मतलब 1 रिवोल्यूशन अगर ये करा तो ये अपना टोटल जितना इसका कर्व सरफेस एरिया वाला पोर्शन होगा वो फ्लैट सरफेस पर कवर करेगा। तो एरिया जो कवर करेगा वो अपने इसके CSA का कवर करेगा। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। एंड हमको पता है कि ये टोटल रूम को कितने बार में कवर कर लेता है, 300 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा के ये पूरे रूम के एरिया को कवर कर लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि 300 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है। एरिया कवर इन 300 रिवोल्यूशन, दैट इज CSA इंटू 300। एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया CSA into 300, that is 2 pi RH into 300, 2 into 22 by 7, and radius is given, radius is 0.105 and length is 0.4, 0.105 and height is 0.4 and 300, ऐसे हट गया डेसिमल 10। अब ये कैंसिल आउट, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। 22 इंटू 4 3 जा 12 इंटू 3 बाय 1, यहाँ पर जब डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे 1000 आएगा, तो 1 0 यहाँ भी बचा रहेगा। तो ये जो आंसर आ जाएगा 792 बाय 10, डेट इज 79.2। अब मीटर स्क्वायर, now question number 9। Question number 9 is a closed metallic cylinder has its base
diameter 56 centimeter, and it is 2.25 meter high. Find the cost of metal used to make it if its cost is रुपीज 80 पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 56/2 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा रेडियस। और ये सेंटीमीटर में, और वो जो कॉस्ट दिया हुआ है वो स्क्वायर मीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियस इज 0.28 मीटर एंड इट्स हाइट इज 2.25 मीटर। अब ये मेटल जो है क्लोज्ड है, जैसे ये मेटेलिक सिलेंडर है ये क्लोज्ड है, तो मतलब इस पार्ट, ये पार्ट और ये टोटल कर्व, टोटल फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल यूज टू मेक, टोटल कितना मेटल लगा होगा, पूरे पार्ट में मेटल लगा होगा, डेट इज TSA। तो हम लोग TSA फाइंड करके जितना कॉस्ट दिया हुआ है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। A rectangular piece of paper is 22 centimeter in length and 10 centimeter in wide. It is rolled into a cylinder along its length. Find the surface area of this cylinder. Surface area बोला जा रहा है। अब जैसे पेपर देखते हैं, ये रेक्टेंगुलर पेपर, अब इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर को रोल्ड किया गया है इनटू सिलेंडर में, वो भी इसके लेंथ के अलॉन्ग, लेंथ इज 22 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। अब लेंथ के अलॉन्ग अगर इसको फोल्ड करके सिलेंड्रिकल बनाएंगे, इस पार्ट से इस पार्ट के अलॉन्ग अगर इसको फोल्ड किया जाए और सिलेंडर बनाया जाए, तो हम लोग यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जो इसका लेंथ वाला जो पोर्शन है, लेंथ का जो पोर्शन है वो टोटल इसके बेस के सरकमफेरेंस को कवर कर रहा है, बेस के सरकमफेरेंस, और बेस में क्या लगा हुआ है सर्कल। तो बेस का सरकमफेरेंस इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर के लेंथ के बराबर होगा, और चूंकि ये पेपर है तो इसका जो लोअर पार्ट है और अपर पार्ट है वो दोनों ओपन रहेगा। तो अगर इसका बोला गया फाइंड द सरफेस एरिया, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सरफेस एरिया, इसमें कौन सा सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट ओपन है, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। और दिया क्या हुआ है, इसका बेस रेडियस, बेस सरकमफेरेंस दिया हुआ है और बेस में सर्कल लगा, मतलब सर्कल का सरकमफेरेंस इस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का लेंथ बनेगा। circumference of circle is equal to its length is 22 सेंटीमीटर, और जो इसका ब्रेथ है वो सिलेंडर का टोटल हाइट इज 10 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से हम लोग पहले रेडियस फाइंड करेंगे, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, 2 into 22/7, तो r is equal to 22, then r is 22 into 7/2 into 22, तो रेडियस जो मिला हमको कितना 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया मीन्स कौन सा सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका टॉप और लोअर पार्ट दोनों ओपन रहेगा अगर ये पेपर को फोल्ड किया जाए। तो CSA कर्व सरफेस एरिया 2πr h, that is 2 into 22/7 into radius is 7/2 and height is 10, 7 cancel out, 2 cancel out, 220 centimeter square is its curve surface area, that is surface area. Now the last one is question number 11. Question number 11 is a cylindrical well is 21 meter deep. Its outer and inner diameter is 21 meter and 14 meter respectively. Find the cost of renovating the inner curved surface and outer curved surface at the rate of 25 per meter square.
अब रिनोवेट करना है इसके अंदर से भी और बाहर से भी, एट द कॉस्ट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले सिलेंड्रिकल वेल है, ये इनर वाला पार्ट हो गया। इसका कुछ ना कुछ थिकनेस रहा होगा जिससे कि इसका आउटर पार्ट भी अलग होगा। ये अंदर का पोर्शन, और ये अगर हम पूरा मेजर करें, ये टोटल बाहर का पोर्शन। अब सिलेंड्रिकल वेल इज 21 मीटर डीप, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 21 मीटर। एंड इस इनर डायमीटर, ये जो डायमीटर दिया वो कितना है 21 मीटर। आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर इज 14 मीटर, 14 मीटर। और आउटर डायमीटर जो इसका इस डायमीटर का बात कर रहा है वो कितना दिया हुआ है 21 मीटर। सो अब इसके अंदर से और ये बाहर से रिनोवेट करना है, तो सबसे पहले देखते हैं इनर रेडियस। इनर डायमीटर is 14 meter, so radius is 14 by 2, that is 7 मीटर। अब इनर रेडियस पता है और हाइट तो उतना ही होगा 21 मीटर। देन इनर कहाँ रिनोवेट करना है हमको, इसके कहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया पर। तो कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया CSA is 2 pi RH, that is 2 into 22 by 7 into radius is 7 and h is 21, 7 7 cancel out, 44 into 21, that is 924 मीटर स्क्वायर। इसके इनर में जो रिनोवेट करना है उसका एरिया फाइंड आउट हो चुका है, इनर में जितना रिनोवेट करना है। अब देखते हैं आउटर डायमीटर, और इसका आउटर डायमीटर कितना है 21 मीटर, सो रेडियस इज 21 by 2। आउटर डायमीटर का आउटर CSA is 2 pi RH, 2 into 22 by 7, 21 by 2 into H is 21, 2 cancel out, 7 3 जा 66 into 21, that is 1386। अब ये आउटर CSA और ये इनर CSA, हमको तो दोनों तरफ रिनोवेट करना है, और वो भी कॉस्ट कितने पर 25 पर मीटर स्क्वायर पर। एरिया तो पहले देखते हैं टोटल एरिया फॉर रिनोवेटिंग, टोटल एरिया फॉर रिनोवेटिंग। अब टोटल एरिया फॉर रिनोवेटिंग इज 1386 प्लस 924, दैट इज 2310 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया जहाँ पर हमको रिनोवेट करना है, और किस कॉस्ट पर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर renovating is ₹25, so the cost of इस एरिया को रिनोवेट करना है 2310 into 25, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद we will get the answer। So thanks।